Hello students, this is Bharat Bhushan and today I am going to explain the most important topic of the chapter solution, that is colligative property. The colligative property is very applicable in daily life. What are these concepts that I am going to explain? Listen carefully, take the note and note out the question if you are in mind. Okay, just 1 minute. That's fine. Okay. I am talking about the colligative property, the topic. The chapter is solution. In the solution chapter, according to NCERT, the chapter number 2, but according to the CBSE in session 22-23, that is the chapter number 1. And in this chapter, the colligative property. What is this? Definition of the colligative property. Write down, everyone. The properties of solution which depends on number of particle, or you can say number of moles, because number of moles is equivalent to number of particle. The colligative property Cp is directly proportional to number of particle, right? Now we are going to explain in detail of the all colligative property. There are 4 different types of the colligative property. The types of colligative property. The first one is relative lowering of vapor pressure. In vapor pressure. This is again most important. The second one is boiling point elevation. Third one is freezing point depression. And last colligative property, that is osmotic pressure. These are the 4 different colligative property और इन सब के बारे में हम डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं, right? Let's start the relative lowering of in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. This is the heading. The first colligative property. Now, what is this? You know already in the topic of the vapor pressure, if any kind of solute is added in the solvent, their vapor pressure gradually decreases. Why? Because solute particle get associated with the some solvent particle during the dissolution. And that's why, obviously, to compensate that equilibrium, the some vapors of that solvent decreases or converted, you can say converted into the liquid. That's why
the vapor pressure decreases. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं आपको. लेट्स सी वी हैव कंटेनर और इसके ऊपर कुछ वेपर्स है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, राइट. और इसका वेपर प्रेशर P नॉट A है. नाउ वी ऐड सम B सॉल्यूट, हमने ऐड किया. तो नाउ न्यू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इज PA and the relation between PA and P naught A is PA is always lesser than P naught A. ये हम बता चुके हैं. तो कितना का डिफरेंस हुआ? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कितना का डिफरेंस हुआ? P naught A minus PA. You can write this is the lowering in vapor pressure. And what is the meaning of relative lowering? You can write here. रिलेटिव लोअरिंग का मतलब हो जाएगा कि उसका रेट क्या है, कितने में कितना कम हुआ. यू कैन राइट हियर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आउट ऑफ P नॉट A. दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. And what is the statement of the colligative property regarding that? The statement of CP, colligative property of relative lowering of vapor pressure, that is, there are two types of different statement. The first statement is lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction. What is the meaning of that? You can write here P naught A minus PA is directly proportional to mole fraction. And mole fraction of what? Mole fraction of solution or solute. Mole fraction of B you can write here. Okay. And whenever we remove the proportionality sign in that, P naught A minus PA, that is equal to P naught A chi B. और ये फॉर्मूला बन के क्या बन जाएगा? P naught A minus PA upon P naught A, that is equal to chi B. And what is the P naught A minus PA divided by P naught A? This is the relative lowering of vapor pressure. Another statement, the second statement you can write here, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction. Mole fraction of solution or mole fraction of solute. सॉल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, जो कंसंट्रेशन टर्म में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू सेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यू हैव टू वेल अंडरस्टैंड अबाउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये कंसंट्रेशन यूनिट है तो सॉल्यूट का ही होगा. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के बारे में उसमें मेंशन करना होगा, राइट. दिस इज द फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसे करेंगे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट, देन आफ्टर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. व्हाट वी गॉट? P naught A minus PA upon P naught A, that is equal to chi B, and chi B is written as number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. इसको लिख सकते हैं ऐसा. And you know number of moles of anything is given mass upon molar mass. On the basis of that आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. In case of over diluted solution, अगर ओवर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या करेंगे हम? P naught A minus PA upon P naught A, that is equal to number of moles of B upon number of moles of A. Do you know why? इसके सपोर्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? Number of moles of B is very less than number of moles of A. Therefore,
number of moles of B can be neglected. Neglected from denominator. डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बात हो जाएगी, राइट। ये हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, उसका क्या रेशियो था, कितना परसेंटेज था, और ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, राइट। अब हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ molar mass of unknown solute or solvent, स्पेशली सॉल्यूट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपके पास पता है P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसकी वैल्यू अगर पता है तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी में वैल्यू डाल करके हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और यहां पर जो आप देख रहे हैं mb, this is the molar mass and this have to required to calculate। तो इस तरीके से हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। Initially, you know, boiling point is the temperature at which any liquid or any substance starts boiling. यही तो हम करते हैं। The temperature at which any liquid starts boiling. But if you see the mechanism of the boiling, what we understand, अगर इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें यू कैन से वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर हमने डाल दिया फॉर बॉइलिंग, हम बॉयल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, लेट्स सी वी कंसीडर अबाउट दिस पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया है। तो जब भी हम बॉयल करेंगे तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी वाटर मॉलिक्यूल की। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो मूव करना शुरू करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। बट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से पहले इसको अपोज करना पड़ेगा लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसको अपोज करके ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही वो सरफेस पे आया तो सरफेस पे आकर के एक और प्रेशर एक्सर्ट होगा जो इनवर्ड प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATMP, जो जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब जैसे ही उस प्रेशर के बैरियर को ये पार्टिकल तोड़ेगा तो देन आफ्टर दिस वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। अब ध्यान से समझो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल इस सरफेस पे आया तो उस सरफेस पर क्या है, अभी वो वेपर तो है लेकिन उस वेपर का उस वेपर को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। दैट वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज वेपर फ्री होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वाटर बॉयल होना शुरू हो चुका है।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वेपर प्रेशर का डायरेक्शन यहाँ पर अपवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब वेपर प्रेशर सुपरसीड कब करेगा? जब एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। एट दैट पॉइंट ही स्टार्ट द सुपरसीडिंग, और तब उस बैरियर को तोड़ के वो फ्री वेपर में कन्वर्ट होगा, एंड देन वी कैन से द लिक्विड और वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। इसका मतलब इस मैकेनिज्म के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, ATMP. This is called boiling point. Now I am talking about the what is the colligative property regarding that. क्या कहता है colligative property? A statement of the colligative property. Statement of CP. Colligative property का statement ये कहता है कि जब भी हम कोई सॉल्यूट को मिक्स करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। लेट्स सी एग्जांपल कि हियर इज द स्केल ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, that is P naught A. Whenever solute is added, the vapor pressure decreases, that is PA. Here is the level of the atmospheric pressure, ATMP. Now we are going to boil this pure liquid. So what we have to do? इसका वेपर प्रेशर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। एंड अब हम इस लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, जब हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया, इसको भी यहां तक लाना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, टेम्परेचर किस में रिक्वायर्ड ज्यादा होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 और T2? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली T2। दैट मींस elevation in boiling point takes place. Here is the elevation in boiling point takes place. Boiling point increase कर जा रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से। एंड कितना से फर्क आएगा? elevation in boiling point will be T2 minus T1, that is delta TB. P stands for boiling. तो स्टेटमेंट कॉलिगेटिव प्रोपर्टी का ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दोनों एक ही बात है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस delta TB is directly proportional to molality. Delta TB और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज KB इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी स्टैंड्स फॉर द कैपिटल M डैश। ये कर सकते हो, ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। अब आपको रीजन पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों हुआ, एलिवेशन क्यों हुआ, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था। और इस ग्राफ से आपको क्लियर कट पता चल गया होगा, राइट? नाउ इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं। वी गॉट व्हाट? डेल्टा TB दैट इज इक्वल टू KB into capital M dash. And what is KB? KB is ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant. और इसका सेकेंड नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत आसान है। डेल्टा TB दैट इज इक्वल टू KB इंटू M डैश। तो डेल्टा TB becomes equal to KB whenever M dash is 1. तो इसको आप डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन करेंगे? KB यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू elevation in boiling point
boiling point for 1 मोलल solution जिसकी मोलैलिटी 1 हो. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट. अगर इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा. ध्यान से देखो. लेट्स सी कि हमारे पास एक दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और दोनों कोऑर्डिनेट में हमें क्या करना है? यहाँ पर वेपर प्रेशर लेना है और यहाँ पर हमें टेम्परेचर लेना है, बॉइलिंग पॉइंट यू कैन से, राइट. और ये जो लेवल तुम देख रहे हो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, एटीएमपी का है, राइट. यहाँ पर दो लाइन हम लेते हैं. ये प्योर सॉल्वेंट का है T1, दिस इज द T2, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, और दोनों के बीच में डिफरेंस डेल्टा TB. डेल्टा TB ये सॉल्वेंट का है. अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ यहाँ पर आ रहा है. दिस इज फॉर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, और दिस इज फॉर सॉल्यूशन. सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है. वेपर प्रेशर यहाँ पर आ गया. वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा था और सॉल्यूशन का कम हो गया. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस. यू कैन राइट हियर द P0A and this is PA. इस तरीके से हम समझ सकते हैं. Now one relation what you have to understand, relation between, वो भी यहीं पर हम लिख देते हैं आपको. Relation between KB boiling point and enthalpy change of that process. क्या रिलेशन होगा ये देखते हैं. There is the KB that is equal to mR TB square upon enthalpy change of vaporization, because boiling में vaporization enthalpy change होगा, into 1000. This relation have to learn only because इसका derivation आपको नहीं करना है. What is R? R is the gas constant. What is TB? TB is the boiling point. And what is delta H? Of vaporization, enthalpy change of vaporization. अगर किसी को बॉयल कर रहे हो किसी लिक्विड का, तो उसमें कितना एंथैल्पी चेंज हुआ? That's the enthalpy change. And you know what is Kb? Molar elevation constant. What is M? Molar mass. So this is all about elevation in boiling point, जो हमने आपको बताया. Now, how can you prove that elevation in boiling point is a colligative property or any can? यहाँ पर एक का मैं बता देता हूँ. Delta TB that is equal to Kb into molality. ये फॉर्मूला. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कैपिटल W इन kg. एंड व्हाट इज कैपिटल W? कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज ऑल अबाउट दैट. एंड यू नो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स यू कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल. एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट which depends on the number of particles. That means delta TB depends on number of particle. Number of particle पे depend अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो colligative property है. And now what is the application? Application again वही होगा in the calculation of molar mass. Molar mass calculate कर सकते हो. Delta TB that is equal to number of moles Kb into number of moles upon capital W, जो यहाँ ऊपर लिखा है. नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं हम Kb into small w upon m, that is capital W, and here is the m. M is molar mass. और मोलर मास हम किसी भी अननोन सॉल्यूट का
कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस मेथड. This is all about the application of that. Okay. Now moving forward, next colligative property, that is third colligative property, and the third one is the depression in freezing point. And what first of all, what we have to understand, that is freezing point. What is freezing point? The freezing point, जैसा आप जानते होंगे, the temperature at which any substance freezes. But if you think related to the vapor pressure, तो क्या होगा कि the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of their solid. कहने का मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड है, कोई सॉलिड है, यहाँ पर एक लिक्विड फेज है, ये लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर होगा P नॉट ए, और इसी से बना हुआ कोई सॉलिड है, उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, दैट इज द P नॉट ए सॉलिड. और नॉट लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर जब इस लिक्विड की बात करते हैं तो लेट्स सी, थोड़ा सा और भी क्लियर विजन लेते हैं हम इसका, कि वी हैव P नॉट ए हियर, और आपको पता है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज PA हियर. वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग एनी सॉल्यूट, तो उसका डिक्रीज करेगा. अब इसका रिस्पेक्टिव वेपर जो होगा, सॉलिड जो होगा, यहाँ पर होगा P नॉट ए सॉलिड, बट इसका रिस्पेक्टिव और भी नीचे जाएगा, दैट इज PA सॉलिड. तो अगर हम दोनों के टेम्परेचर को कंपेयर करें तो यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ आना है, तो दिस इज द T1, दिस इज द T2. T2 is always less than T1. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया. कितना डिप्रेस किया? T2 minus T1, that is equal to delta TF. This is depression in freezing point. Depression in freezing point. Now, what is the colligative property related to that? इसके बारे में जानते हैं. Colligative property statement of freezing point depression delta TF. क्या होगा इसका statement? Delta TF, you can say here, is directly proportional to same मोलैलिटी. सेम होगा, मोलैलिटी पर डिपेंड करेगा. तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी. और यहाँ पर KF को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं. या इसी का दूसरा नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. दिस इज KF. और KF को फर्दर डिफाइन भी कर सकते हो तुम, जैसा आपने अभी देखा था. KF is equivalent to delta TF for 1 मोलल सॉल्यूशन. वेरी सिंपल. ये फॉर्मूला सा आ गया. इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कैपिटल W. वेरी सिंपल. इस तरीके से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ ग्राफ से क्या हम इसका इस्तेमाल करेंगे?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ग्राफ, let's see example, we have temperature here and here is the vapor pressure, सेम उसी तरीके से होगा। और इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ में बस क्या होगा कि सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, राइट। और ये डिक्रीज कर गया, पहले प्योर सॉल्वेंट का था यहाँ पर, दिस इज T2, दिस इज यू कैन राइट हियर T1, और या उल्टा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐड करने के बाद डिक्रीज हो गया, यानी T1 इज लेस देन T2, आपको यहाँ समझना है। एंड दिस इज फ्रोजन जोन, ये फ्रोजन जोन है, ये डॉटेड लाइन से हमने किया है। उसमें उस एरिया में उस टेम्परेचर रेंज में सारे के सारे लिक्विड फ्रीज होंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगेन एप्लीकेशन क्या हो सकता है, मोलर मास कैलकुलेशन। मोलर मास कैलकुलेशन कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कैपिटल W। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं KF इंटू स्मॉल w अपॉन m डिवाइडेड बाय कैपिटल W, और m इज मोलर मास। यहाँ पर m क्या हो जाएगा, मोलर मास होगा, वेरी सिंपल। दिस इज द फॉर्मूला इज ऑल अबाउट। अब अगेन यहाँ पर रिलेशन हम लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन delta TF, or not delta TF, you can say TF only, that is the freezing point KF, and enthalpy change of freezing, right? What is the formula? KF, that is equal to mRTF square upon enthalpy change into 1000, same। और सेम वही होगा यहाँ पर, R is gas constant, TF that is equal to freezing point, M is molar mass, and KF is molar elevation depression constant. So this is all about the freezing point depression. Very simple, बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हो, राइट। और यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं कि हाउ कैन यू से दैट freezing point depression is the colligative property. Delta TF that is equal to KF into number of moles upon capital W. Since delta TF is directly proportional to number of moles, delta TF depends on number of particle, और नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हेंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP. So this is all about the delta TF. Now moving forward, the last colligative property, that is osmotic pressure. Before proceeding, you have to understand what is the osmosis. Osmosis क्या होता है? Osmosis is the flow of liquid from low concentration to high concentration through SPM, semi-permeable membrane. This is semi-permeable membrane.
And what is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane is the specific designed membrane which allows only one types of the component of solution, either solute or solvent. But यहाँ पर जो semi-permeable membrane बनता है, वो सिर्फ solvent को allow करता है. And this semi-permeable membrane made by cellulose acetate. Cellulose acetate से बनता है. और this could be also one word question कि semi-permeable membrane किससे बनता है, right? अब प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं. लेट्स सी, दिस इज द एसपीएम. ये एक एसपीएम है. यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन एरिया है. हाई कंसंट्रेशन एरिया मतलब जहां सॉल्वेंट कम होगा. दिस इज द लो कंसंट्रेशन एरिया. So there will be the flow of low concentration to high concentration. Flow of what? Flow of solvent. Here is the flow of solvent takes place. अब यहाँ ध्यान से समझना इस मैकेनिज्म को. ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है तो यहाँ पर कैसे हो रहा है? Here is the high concentration area. तो जो solute particle है exerts pressure on the SPM. Exerts pressure. इधर जो solute है वो भी pressure exert करता है, but इसका pressure ज्यादा exert होगा. तो on the counter of that, ये जो pressure exert करता है इसमें solvent particle इसको पार कर जाता है. And gradually the high concentration converts into low concentration, and the low concentration gradually converts into high concentration. और तब तक ये प्रोसेस चलता है जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वेट ना हो जाए. This pressure exerted by the liquid on the wall of the container or wall of the SPM, this pressure is called osmotic pressure. और ये प्रेशर कब तक एक्सर्ट हो रहा है? जब तक कि दोनों साइड कंसंट्रेशन आइडेंटिकल ना हो जाए. तो यू कैन से हियर कि सफिशिएंट प्रेशर, इसको थोड़ा अलग से कर लेते हैं. सफिशिएंट प्रेशर exerted by liquid on the wall of SPM to stop osmosis. क्या मतलब हुआ? ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ कि जब तक फ्लो चल रहा है और अगर फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो ऑस्मोसिस नहीं हुआ. तो फ्लो स्टॉप कैसे होगा? मैंने फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इधर हाई कंसंट्रेशन एरिया है, प्रेशर एक्सर्ट किया, इसके अपोनेंट प्रेशर लो कंसंट्रेशन एरिया पर एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहां से सॉल्वेंट इसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन एरिया में आ जा रहा है. तो अब जब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अगर दोनों प्रेशर इक्वेट कर जाए तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट का फ्लो नहीं हो पाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेशर कब तक एक्सर्ट हो रहा है? जब तक कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए. अगर दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होगा. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेट फोर्स? दैट इज जीरो. तो यू कैन से देयर इज नो ऑस्मोटिक प्रेशर हियर. इसीलिए कहा गया है कि sufficient pressure exerted by the liquid on the wall of the SPM to stop the osmosis. इसको हम osmosis कहेंगे, right? There is one term also here, that is the diffusion. इसको जानना जरूरी है. What is the difference between the diffusion and osmosis? Diffusion is the process of flow of substance from high concentration to low concentration. Or here is the osmosis, flow of solvent from
low concentration to high concentration. तो क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अपोजिट प्रोसेस है? नहीं, अपोजिट नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज लिखना जरूरी है, थ्रू एसपीएम, तभी ये डेफिनेशन कंप्लीट होगा। जनरली जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, उसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है। लाइक आपने किसी रूम के किसी कॉर्नर पर आपने सेंटेड स्टिक बर्न किया, जलाया, तो क्या होगा, उसका जो फ्रेग्रेंस है वहां पर हाई कंसंट्रेशन एरिया है जहां पर आप जला रहे हैं, क्योंकि वहां प्रोड्यूस हो रहा है। रेस्ट ऑफ द रूम में लो कंसंट्रेशन है, तो अपने आप इधर का फ्रेग्रेंस उधर चला जाए। बट ऑन द पार्ट ऑफ दैट, क्या यहाँ का जो फ्रेग्रेंस है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें कि आपने सेंटेड स्टिक यहाँ जलाया, यहाँ से फ्रेग्रेंस रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम, ये पूरा का पूरा कमरा है, तो अगर इफ यू थिंक अबाउट दिस एरिया, अगर इस एरिया में हम देखते हैं तो लो कंसंट्रेशन है और इधर हाई कंसंट्रेशन है, तो ये अपने आप यहां से इधर मूव करेगा, बट यहाँ पर वैक्यूम तो क्रिएट नहीं होगा, एयर फ्लोज फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सेम वे दैट इज दिस प्रोसेस डिफ्यूजन में यही हो रहा है। डिफ्यूजन में भी दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा है, बट ऑस्मोसिस में हम बॉन्ड लगा देते हैं एसपीएम लगा करके कि सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्लो करेगा। दैट्स व्हाई osmosis looks like the opposite process of the diffusion, but really this is not opposite process. ये क्लियर हो गया, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझ चुके हैं, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ चुके हैं, अब हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या स्टेटमेंट है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। Osmotic pressure, that is pi, is directly proportional to concentration, and here is the concentration, that is molarity, molar concentration. That means pi is directly proportional to C, and C is the molarity. And to remove the proportionality sign, you can put here the constant pi, that is equal to constant C. And what is K? K is R multiplied by R into T, that is rate constant and temperature. Gas constant and temperature, not rate constant, gas constant and temperature. So what will be the formula after that? Pi, that is equal to CRT. This is the basic formula of the osmotic pressure. This is all about the osmosis and osmotic pressure. What is the application of that? Again, you can write here. Application क्या होगा? Application of osmotic pressure. The first application in the calculation of molar mass, and generally osmotic pressure is preferred to calculate the macromolecule particle because इसकी जो calculation accuracy होती है ज़्यादा अच्छी होती है, और concentration term इसमें इस्तेमाल होता है molarity. That's why we can easily calculate the molar mass of macromolecule. जैसे हम बाकियों में कैलकुलेट करते हैं वैसे यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई दैट इज इक्वल टू CRT, तो C को लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT, और नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो स्मॉल w अपॉन m अपॉन V RT। तो m इज व्हाट? मोलर मास। यहाँ पर हम मोलर मास और पाई के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, isn't it? And second application, that is in
reverse osmosis water purifier. Water purifier. रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जिसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एसपीएम लगा है यहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन मतलब सॉल्टी वाटर, जो डर्टी वाटर है. इधर लो कंसंट्रेशन मतलब फ्रेश वाटर. नॉर्मली एसपीएम क्या अलाउ करता है, सॉल्वेंट को, और नेचुरली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन फ्लो करेगा. बट यहां पर हम एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर एग्जर्ट कर देते हैं, सो दैट कि जो सॉल्वेंट का फ्लो हो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाए. इसको, चूंकि ये प्रोसेस ऑस्मोटिक के अगेंस्ट है, ऑस्मोटिक प्रोसेस के रिवर्स है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोटिक. और उसका हमें एडवांटेज मिलता है कि हम किसी भी सॉल्टी या इम्प्योर वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द osmotic pressure. Very simple, isn't it? So these are the different 4 colligative properties that you have understand today. And after that, what are the all different applications, and what are the abnormalities, and what are the different corrections in the colligative property, we'll discuss in the next class. So God bless and take the note. Okay, everyone.